Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 8 of the chapter Alcohols, Phenols and Ethers in Chemistry. In the previous lecture, we were discussing about the reactions of phenols, and and we discussed that these reactions they are only applicable for phenols and not for alcohols. So the first reaction we discussed was electrophilic aromatic substitution. And under this category, there were two reactions. First is nitration and the second is halogenation. So for the case of nitration, see both of these reactions, they depend upon the reaction conditions that are used. Like in the case of nitration, if we use dilute HNO3 with phenol at low temperature, at the room temperature, then we will get mononitro products. Matlab the nitro products, the NO2 group will either be added at the ortho position or at the para position. But if we use concentrated HNO3 and not dilute, we are using concentrated HNO3 with phenol, then we will get tried nitrophenol. Matlab the nitro groups, they will be added at both the ortho position and the para position together. Trinitrophenol. And this is also known as picric acid. We also discussed that we if we want to separate these ortho and para isomers, then we will use steam distillation because there is a large difference in the boiling point of these isomers. Coming to the next reaction, it was halogenation. And when we are treating phenol with bromine in a solvent like CS2 or chloroform at the low temperature, then monobromophenol will be formed at either at the ortho or at the para position. But at the same time, if we are using bromine water without any solvent, then ट्राइब्रोमोफेनॉल विल बी फॉर्म्ड. जैसा नाइट्रेशन के केस में था कि अगर हार्श कंडीशन यूज किया है या फिर कोई हार्श रिएजेंट यूज किया है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, तो हमें मल्टी प्रोडक्ट मिले, मतलब हमें मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. देन वी डिस्कस द कोल बेस रिएक्शन. In that, phenol is treated with NaOH and then with CO2, and after that with the acid, and we get the salicylic acid. Salicylic acid is 2-hydroxybenzoic acid. Then we discuss the Reimer-Tiemann reaction, in which phenol is treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH, and we get salicylaldehyde. On reaction with zinc, phenol converts to benzene. And when phenol is oxidized, and the oxidizing agent used is chromic acid. Chromic acid is H2Cr2O7. ठीक है. Diketone is formed and that ketone is known as benzoquinone. And we also discussed several of the examples relating to these. So now we will going to discuss some of the commercially important alcohols. And these are basically methanol and ethanol. So let's start today's session. Commercially important alcohols. So first we will be talking about methanol, which is CH3OH with one carbon. Right? So first let's discuss about the preparation of methanol. So initially, previously, methanol was produced by destructive distillation of wood. So destructive distillation में क्या होता है कि wood is heated in the absence or the limited supply of air. मतलब पूरा proper excess of air में आप burning नहीं करवाते हैं, in the absence of air करवाते हैं to produce a mixture of tar, turpentine, charcoal and methanol. ठीक है, तो हमें ये चार products मिलते थे when we did the destructive distillation of wood. But this method is it was realized later on that this method is good only for the स्मॉल स्केल पर्पसेस. मतलब बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में अगर आपको मीथेनॉल प्रिपेयर करना है तो इतना अच्छा ईल्ड नहीं देता है. सो फॉर द कॉमर्शियली एंड फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज we use catalytic hydrogenation of carbon monoxide at the high pressure and temperature. So the reaction that will be this, this is carbon monoxide. It is treated with hydrogen. This is
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है? ZnO, दिस इज जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, दिस इज द कैटलिस्ट। और रिएक्शन कंडीशंस है हाई प्रेशर ATM एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। एंड आर प्रोडक्ट इज मिथेनॉल, ठीक है। सो दिस इज used method, this is the method that is used nowadays. Now methanol is a colorless liquid. It has a boiling point of 337 Kelvin. And the most important point here is that it is highly poisonous. Okay. The ingestion of small quantities, they can even cause blindness, or large amounts they can be fatal. They can cause death. ठीक है, तो इसी वजह से the I mean while handling methanol you should be very careful that you that either उसके वेपर भी आपके the वेपर भी आपके बॉडी के अंदर नहीं जाने चाहिए, because they can be harmful. Now it is used, coming to the uses, it is used as a solvent in paint, as a solvent in paints, varnishes, and for the manufacture of formaldehyde HCHO, ये मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट methanol. Now we will talk about another important alcohol, that is ethanol. Ethanol is C2H5OH. By the way, methanol is also known as wood spirit, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे वुड से ही प्रिपेयर करते थे, तो इसलिए people used to call it wood spirit, ठीक है। तो ethanol, coming to the preparation, it is prepared using the fermentation of sugars, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब अब बहुत सारी अलग अलग टाइप की एंजाइम्स या फिर ईस्ट के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, तो देर द शुगर इज प्रेजेंट इन मोलासेस, शुगर केन, और इन फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, that is converted to glucose and fructose in the presence of the enzyme called invertase. So the first step will be that you have sugar. Sugar का जो formula है that is C12H22O11 treated with water in presence of an enzyme called invertase. I'll write down the spelling again. This is invertase, and it will break down the sugar into glucose and fructose, and these are C6H12O6 plus C6H12O6, ठीक है। Both the formulas are same but their structures are different, ठीक है। Now I'm not going into the details of the structure because it is not relevant here, but if you want to see कि इनका structure कैसा होता है, so you can just Google it. So it is glucose and fructose. Now what happens is this glucose and or fructose is treated with another enzyme called zymase, ठीक है। तो these products, they undergo fermentation in presence of another enzyme called zymase to give ethanol, C2H5OH plus CO2, ठीक है। तो this is the preparation of ethanol. Now you must be knowing that in the in wine and all also ethanol is present. तो preparation of wine के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं. When the grapes ripen, so when grapes ripen after some time, so their sugar level increases, and जो enzymes होती है ना, they are collected at the outer level, outer coating of grapes. So when the grapes are crushed after ripening, when they are crushed, the sugar and the enzyme, they come into contact, and when they come in contact the fermentation begins, क्योंकि enzyme के ही through fermentation होता है, तो fermentation शुरू हो जाता है। और फिर when the sugar level when the alcohol level it increases to 14%, then the fermentation stops, ठीक है। So also this fermentation is done in the absence of air,
है, मतलब जैसे ऊपर हमने जैसे इस पे देखा था इथेनॉल वाले केस में, यहाँ पे भी एयर नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड CO2 इज रिलीज्ड। नाउ अगर एयर आ जाए उस प्रोडक्ट में, जो वाइन हमारा बना हुआ है, if in the presence of air, if that wine comes into contact with air, the ethanol will be oxidized to ethanoic acid. ठीक है, alcohols they get oxidized to acid, right, which will give a bad taste to the alcoholic drinks. That is why बोलते हैं कि वाइन वगैरह को uh, ज्यादा देर ऐसे लाइक ओपन करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। And now coming to the properties of ethanol, it is also a colorless liquid. It has a boiling point of 351 Kelvin. This is also harmful because its ingestion, it affects the central nervous system. ठीक है, central nervous system मतलब the nervous system is only responsible for all the reflexes in our body, right? कि हम कोई action और reaction वाला जो concept होता है, so that reaction, every kind of reaction that is because of the nervous system. So after ingestion, the ingestion of ethanol will affect the judgment, like you will not be able to think properly and lower the reflexes and all inhibitions। ठीक है, बॉडी में इनहिबिशंस जो होते हैं, ठीक है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाओगे, आपके सोचने और समझने की जो एबिलिटी होती है ना, उस पे इफेक्ट करता है। एंड इवन द हायर अमाउंट ऑफ द इथेनॉल इट कैन कॉज नॉजिया एंड अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी, ठीक है। So all these effects, so you must have seen that all these effects they are seen in people who have taken the alcoholic drinks, ठीक है। तो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही इफेक्ट होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली, दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, है ना, उनके रिफ्लेक्सेस धीमे हो जाते हैं। Now uses are similar to methanol. It is used as a solvent in the paint industry and manufacture of organic compounds. And also, as I told you, it is used for many of the alcoholic drinks. But the content of ethanol is very less, ठीक है, परसेंटेज जो होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन पे it badly affects our body. Now there is one concept of denaturation of alcohol. I am writing it down. This is denaturation of alcohol. So the commercial alcohol, when it is mixed with copper sulfate, ठीक है, एंड पेरिडीन, तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, वो एक कलर डाल देता है। तो कॉपर सल्फेट के मिक्स होने की वजह से देयर इज सम कलर इन दैट ड्रिंक, एंड पेरिडीन इट हैज गॉट अ वेरी फाउलिंग और वेरी बैड स्मेल। So after mixing copper sulfate and pyridine, that commercial alcohol is not fit for drinking purposes. ठीक है, तो then it is known as, this process is known as denaturation of alcohol. So now we have discussed everything about the alcohols and phenols. We started off we started off with the structures. We talked about the bond lengths and the bond angles, कैसे change होते हैं, क्या hybridization होता है, ठीक है। Starting from the structures, we went on to the preparation of alcohols and phenols separately, ठीक है, कैसे prepare करते हैं। Then we talked about the physical properties, that is solubility and boiling points, and their trends. Then we came to the reactions, chemical reactions of alcohols and phenols separately, ठीक है। So we had covered almost everything in the aspect of alcohols and phenols. Now we will come to ethers, and we will study all these similar aspects about ethers. So as I told you, ethers क्या होते हैं, they are R prime, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस व्हेन, और उनका क्लासिफिकेशन क्या था कि व्हेन R इज इक्वल टू R प्राइम, मतलब व्हेन बोथ द alkyl groups are same, then it is known as simple or symmetrical ether. And when R is not equal to R prime and both the alkyl groups are different, then it is known as mixed or unsymmetrical or asymmetrical, whatever you may call it.
ईथर्स। ठीक है, तो बस इतना ही क्लासिफिकेशन होता है। So now we will directly move on to the preparation. Only two methods are here for the preparation of ethers. One is by the dehydration of alcohol, or dehydration matlab the removal of a water molecule, and the another is the Williamson synthesis. ठीक है, तो I will let's take a new page. Preparation. So the first method we will talk about is dehydration of alcohol. Acha, we had already done this when we were when we were talking about alcohols. कि chemical reactions of alcohol जब हम लोग पढ़ रहे थे तो we had already covered this. But यहाँ पे there what we discussed कि जब dehydration होता है alcohols का तो alkene is a product. But यहाँ पे we are talking about ethers. तो we will see कि when are the ethers formed and when is the alkene formed. Obviously there is the difference in the reaction condition that makes the products different. ठीक है, so as before जो dehydration होता है that is done in the presence of protic acids like H2SO4 and H3PO4 in presence of acids like H2SO4 and H3PO4. ठीक है, so now I am giving you the example कि how does the products depend upon the chemical the reaction conditions. So I am taking I am taking ethanol and I am treating it with H2SO4 and the temperature is 443 Kelvin. ठीक है, and I observe that I get alkene or ethene as the product. But when I am treating ethanol with H2SO4 at a lower temperature, that is 413 Kelvin, I get another product which is ethoxyethane. ठीक है, ये ईथर है, ये एल्कीन है, तो इसका मतलब कि at the harsh condition or you can say at the higher temperature we will get alkene and at the lower temperature we are getting an ether. ठीक है, तो पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से दो प्रोडक्ट्स, टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्शन कंडीशन. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म से ईथर बन रहा है, दैट इज SN2, that is nucleophilic bimolecular reaction. Nucleophilic bimolecular substitution, which is SN2, short form में SN2 बोलते हैं. 2 is for bimolecular. ठीक है, so the formation of ether is through the SN2 mechanism. Now we will study the different steps which are involved. ठीक है, तो ठीक है, so the first step of this mechanism will be प्रोटोनेशन. ठीक है, जैसे कि एल्कीन के केस में होता है वैसे भी यहाँ पे रहेगा प्रोटोनेशन. ठीक है, प्रोटोनेशन में क्या होता है कि जो एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका प्रोटॉन, एसिड क्या होता है, एसिड इज अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग द प्रोटॉन्स इजीली. ठीक है, तो एसिड विल डोनेट अ प्रोटॉन मतलब H प्लस एंड दैट H प्लस विल गेट एडेड to this oxygen of the hydroxy group of the alcohol. So this is CH2, this is OH. ठीक है, this is the hydroxy group and when proton uh, attach this, then the product that we get is protonated alcohol and the structure is ये जो H प्लस है ये इस ऑक्सीजन से लगता है आके एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर फॉर बोथ द केसेस, मतलब एल्कीन के केस में भी फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना, यहाँ से डिफरेंस आता है. ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज अगेन अटैक्ड बाय द अनदर इथेनॉल मॉलिक्यूल. एक दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, वो अटैक कर देता है इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इज CH3CH2O. ठीक है, और साथ में वाटर. ठीक है, द अनदर प्रोडक्ट इज वाटर.
ना यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस O पे मतलब वाटर इज बीइंग रिमूव्ड, तो कौन सा वाटर रिमूव हो रहा है, ये वाला। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे पूरा H2O ग्रुप है ना, ये दिस वन, आई एम encircling it, दिस ग्रुप इज बीइंग रिमूव, दिस इज वाटर। ठीक है। नाउ अब जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, इस पे आके ये ग्रुप लग रहा है, दैट इज CH3CH2 प्लस। आके जब इस पे लगेगा ऑक्सीजन पे, तो ये नया ग्रुप हमारा बन जाएगा। ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का ऐड होना, और डीप्रोटोनेशन का मतलब द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का हट जाना। यहाँ पे क्या रिमूव होगा कि ये वाला H और ये वाला प्लस, तो H प्लस रिमूव हो रहा है। एंड फाइनली वी गेट अ प्रोडक्ट विच इज लाइक दिस, ईथर, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, प्लस H प्लस। ठीक है, तो यू सी कि पहले स्टेप में H प्लस वॉज बीइंग यूटिलाइज्ड, दिस H प्लस इज द प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में दिस H plus was being used, and in the last step the H plus is being formed। ठीक है, तो जो आपने यूज किया वही एंड में आके यू आर अगेन बैक विद दैट प्रोडक्ट। So these are the three steps which are involved in the formation of ether, and the mechanism is SN2। ठीक है। Now अच्छा, see, this whatever I have told you, this is I have shown you for the primary alcohol. Now, do you understand? Can you guess what will happen if you use secondary or the tertiary alcohol in the same condition? What will be the product? So first of all, though, you should be aware of this thing that SN2 जो होता है वो primary alcohols में favorable होता है। ठीक है, this when I was discussing SN1 and SN2, I told you that SN2 is favorable in the case of primary alcohol, and SN1 because SN1 involves the formation of carbocation। ठीक है, and tertiary carbocation is the most stable। इस वजह से tertiary alcohols and secondary alcohols they favor SN1 mechanism। ठीक है, तो पहली बात तो यही हो गई कि if we are using secondary and tertiary alcohol देन SN1 मैकेनिज्म होगा, SN2 नहीं होगा। ठीक है, और वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, बट एक्चुअली में होता ये नहीं है। ठीक है, लाइक एनीबडी में थिंक कि अल्कोहल ये ईथर तो तब भी बन सकता है फॉर द केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, बट दिस इज नॉट द केस। वाई? बिकॉज बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। ठीक है, स्टेरिक क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से एलिमिनेशन इज फेवर्ड। ठीक है, मैंने ये लास्ट क्लास व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, तब भी ये बात डिस्कस करी थी कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है दैट इज द मेन फैक्टर दैट हेल्प्स इन डिसाइडिंग कि एलिमिनेशन विल विन और द सब्स्टिट्यूशन विल विन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन तभी ज्यादातर होता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, जब जगह होती है नए मॉलिक्यूल को या फिर नए ग्रुप को वहां पे आके अटैच होने की। अगर जगह ही नहीं होगी तो अटैच कैसे होगा आगे? ठीक है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा तो वो अटैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस एज अ मेन फैक्टर, जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं दे जनरली फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही केस होता है कि अ, अ, फो- कि इफ यू आर यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल देन तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, यूजिंग SN2 मैकेनिज्म, but if you are using 2 डिग्री or 3 डिग्री alcohol the reaction will undergo SN1। ठीक है, but SN1 तो होना चाहिए for the case of substitution, but because of steric hindrance the elimination will be favored and alkenes will be formed। ठीक है, तो ऐसा देखो आप कि ये 2 डिग्री है
या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब इसके पास दो चॉइस है, ठीक है। या तो ये SN1 से जाके सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये ईथर बनाएगा, ठीक है, इस मैकेनिज्म के हिसाब से। और या तो दूसरा चॉइस है कि एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। तो दिस देयर इज अ competition between these two, between the substitution and the elimination reaction, and in that competition and that fight elimination wins. क्यों? Because of steric hindrance। क्योंकि इतना रिपल्शन होता है कि अगर कोई ग्रुप आके अटैच होना भी चाहे तो वो रिपेल कर जाएगा, ठीक है। इतने ज्यादा फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एलिमिनेशन इज फेवर्ड एंड यू गेट एन एल्कीन, और ईथर नहीं बनता, ठीक है। सो इसका मतलब है, इन शॉर्ट, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म ethers that is applicable only for the primary alcohol, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी में ईथर बनेगा ही नहीं, एल्कीन बनेगा, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड हियर इज कि आप देखो, यू आर यूजिंग वन काइंड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और जब मैकेनिज्म में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दैट अल्कोहल इज अटैकिंग, तो यू देयर इज ऑलवेज अ चांस कि uh, अच्छा, ओके, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि can you think, if I want to manufacture this ether CH3O C2H5, ठीक है, then what will be the reagents that I should use? अगर हम इसी मैकेनिज्म से जाएं तो ये वाला ईथर बना पाना इज नॉट पॉसिबल यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि ये जो ग्रुप्स लगे हैं दे आर ऑलवेज सेम। अब अगर आप इथेनॉल की जगह मीथेनॉल यूज कर रहे हो, मान लो यू आर यूजिंग CH3OH, तो हमारे पास ईथर में क्या बनेगा? You will get CH3 OCH3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल ईथर, मतलब ये सिमेट्रिकल ईथर ही फॉर्म कर पाएगा। अगर हमें मिक्स्ड ईथर बनाना है जैसे ये वाला, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेम्बर कि इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग only the symmetrical ethers. Now, next point that we just discussed is कि using 1 degree alcohol, ठीक है। तो इसका मतलब है, इफ वी वांट टू, मतलब अगर हमें ऐसा ईथर चाहिए कि जो कि सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो भी इससे पॉसिबल नहीं है। नो ब्रांच्ड ईथर, मतलब ऐसा ईथर जिसमें कि अल्काइल ग्रुप्स आर ब्रांच्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो इम्पोर्टेंट, ये 3 important पॉइंट्स है दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मेथड। तो इसका मतलब है कि इफ वी वांट टू प्रिपेयर मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर ब्रांच्ड ईथर, देन व्हाट विल बी द टेक्निक दैट इज यूज्ड? क्योंकि इस टेक्निक से तो बनेगा ही नहीं, इससे बस सिमेट्रिकल ईथर ही पॉसिबल है, ठीक है। देन comes this second method that is known as Williamson synthesis, ठीक है। सो नाउ वी विल go to the second technique, that is Williamson synthesis, ठीक है। तो आई एम राइटिंग आउट द limitations
Okay, okay, we'll first discuss this and then we'll go on. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ सिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड ethers they can be prepared. ठीक है, यूजिंग दिस मेथड. तो इसमें होता क्या है कि आई एम राइटिंग डाउन द जनरल रिएक्शन फर्स्ट. In this method, there is a alkyl halide and that is treated with a alkoxide, sodium alkoxide. I am using R prime just to distinguish between the two groups ONA. Okay, this is sodium alkoxide. Now, what happens is this is simple substitution reaction. इसमें कुछ ऐसा mechanism जैसा नहीं है. What happens is this X and this Na, they are removed and you get this. ठीक है, मतलब कुछ नहीं हुआ कि अल्काइल हैलाइड वाला जो अल्काइल ग्रुप है एंड द अल्काइल ग्रुप विच इज देयर इन सोडियम अल्कोक्साइड, इन दोनों की हेल्प से ईथर बन जाते हैं ये. ठीक है, आर और आर प्राइम का यूज करके. ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि बिकॉज वी आर यूजिंग टू रीजेंट, तो इसका मतलब है कि वी कैन नाउ कंट्रोल कि हमें कैसा ईथर चाहिए. ठीक है, तो whatever type of ether we want, we can use same types of the alkyl halide and the sodium alkoxide. ठीक है, तो हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट्स को टू प्रोड्यूस द काइंड ऑफ ईथर दैट वी वांट टू मैन्युफैक्चर. ठीक है, तो ये तो हो गया कि मिक्स्ड ईथर भी बन सकते हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट यू आर गेटिंग द सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स और नॉट, मतलब जिनमें ब्रांचिंग होती है. ठीक है, तो ईथर्स विच आर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप्स हैं, they can also be prepared using this method because now there will be a nucleophilic attack of the alkoxide ion. ठीक है, on the primary alkyl halide. मतलब अच्छा देखो, दो कंडीशन है. अब हमारे पास आर की भी चॉइस है और आर प्राइम की भी चॉइस है. ठीक है, वी कैन चूज कि हमारे पास कि हमारा आर क्या होगा और आर प्राइम क्या होगा. ठीक है, तो इफ वी आर ट्रीटिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यू वांट अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, मतलब तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है वो मेन ग्रुप होता है एंड जो एल्कोक्साइड आयन होता है इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये आके इस पे अटैक करता है. ठीक है, तो एल्कोक्साइड इज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो इट विल अटैक आर एक्स. तो जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आई टोल्ड यू कि अ, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है देन SN2 विल बी फेवर्ड एंड अगर सेकेंडरी और टर्शरी है तो SN1 विल बी फेवर्ड. ठीक है, तो इट्स सिंपल कि अगर हमें यहाँ पे SN2 करवाना है तो इसका मतलब है कि हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए. ठीक है, और अगर हमने प्राइमरी नहीं लिया तो हमारा एल्कीन बन जाएगा. सिमिलर रीजन कि पहले वाला कि because if for 2 degree and 3 degree alkyl halide there are chances of the formation of alkene. ठीक है, because of steric hindrance factors, एलिमिनेशन की वजह से. ठीक है, तो आई गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू. सपोज we take this alkoxide and we take a primary alkyl halide. ठीक है, तो क्या होगा, ये Na और ये Br and what will be the product, OCH3. ठीक है, और यहाँ पे NaBr. now I can also write another reaction. See, there is a difference between both the reactions. पहले वाले में in the first one the alkyl halide is primary and in the second one the alkyl halide is tertiary 3 degree. ठीक है, और alkoxide ion, the alkoxide ion उतना मैटर नहीं करता. ठीक है,
द डिग्री द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड यहाँ पे मैटर कर रहा है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड इज द सब्स्टिट्यूएंट, और एल्कोक्साइड आयन इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। नाउ अब आप कह सकते हो कि यहाँ से Na और यहाँ से Br इट विल गेट रिमूव्ड, एंड वी शुड गेट द सेम प्रोडक्ट जो हमें ऊपर मिला फर्स्ट वाले रिएक्शन में। ठीक है। बट ये रिएक्शन गलत है, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल गो फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। एंड अ कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड। और दूसरी चीज, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा के इस वाले कार्बन पे, तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ये अटैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो हमने पहले वाले रिएक्शन में डिस्कस किया था। ठीक है। तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल, और ये हमारा ईथर नहीं बनाएगा। इन फैक्ट इट विल गो एलिमिनेशन, इट विल फेवर एलिमिनेशन और एल्कीन बना देगा। क्या बनाएगा? एल्कीन। कौन सा? ये एल्कीन। H और Br is being removed and you get a alkene. ठीक है। तो we can say that the better results are obtained if alkyl halide is primary in nature. ठीक है। When secondary or tertiary alkyl halides are used, elimination favors, elimination wins over substitution, जैसे कि पहले वाले preparation method में हुआ था। Because alkoxide they can act as both the nucleophiles and the strong bases. ठीक है। तो ये रीजन है कि वाई एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन होने के लिए, देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वी रिक्वायर अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन होगा। एंड फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन वी रिक्वायर अ बेस, एंड alkoxide ion is a nucleophile as well as a strong base। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से एलिमिनेशन इज फेवर्ड एंड एल्कीन हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है। तो अगर हमें, इन शॉर्ट, अगर हमें ऐसा सब्स्टिट्यूटेड ईथर बनाना है लाइक दिस, जिसमें कि ब्रांचिंग हो। ठीक है। ब्रांच्ड ईथर काइंड ऑफ थिंग इफ वी वांट टू प्रिपेयर, देन वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज अ प्राइमरी हैलाइड। ठीक है। एंड जो ब्रांच्ड ग्रुप है, जो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप है, उसका एल्कोक्साइड ले लेंगे। ठीक है। तो ऑलवेज फॉर द विलियमसन सिंथेसिस यू शुड ऑलवेज यूज alkyl halide that should be primary, and जो सोडियम एल्कोक्साइड वाला एल्काइल ग्रुप होता है that can be anything। वो सिंपल भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है that will be with sodium alkoxide, and the simple or the primary group will be with the primary halide। ठीक है। So, if we are using 2 degree or 3 degree, then elimination will be favored and alkenes are the major products। ठीक है। तो इस केस में दिस इज alkene will be the major product अगर आप 3 डिग्री यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दिस थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फेनॉल्स। मतलब फेनॉल, इफ यू वांट टू मेक ईथर्स जिसमें कि फेनाइल रिंग भी है, बेंजीन रिंग, तो हमें क्या यूज करना है विलियमसन सिंथेसिस में? यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि हमें जो हैलाइड है वो प्राइमरी यूज करना है, कोई भी प्राइमरी हैलाइड 1 डिग्री प्लस, क्योंकि हमारा फेनाइलिन बड़ा है तो इसको हम लोग एल्कोक्साइड के साथ यूज करेंगे, फेनोक्साइड के साथ, सॉरी। ठीक है। फेनोक्साइड के साथ यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट विल बी OR, एल्काइल एराइल ईथर। ठीक है। तो ये पूरा जो थ्योरी था विलियमसन सिंथेसिस का, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द फेनोक्साइड आयन एज वेल। ठीक है। तो यहाँ पे जो R प्राइम होगा, मतलब अगर ये जनरल रिएक्शन है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो R होगा, मतलब एल्काइल हैलाइड वाला जो एल्काइल ग्रुप है, दैट शुड ऑलवेज बी प्राइमरी 1 डिग्री। ठीक है। और जो R प्राइम होगा वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। जो भी बचा हुआ ग्रुप है दूसरा वाला, एनीथिंग। और अब वो भी हो सकता है फेनॉक्साइड, पीएच भी हो सकता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस। तो
let's first because see both of these methods they are similar because in both of them for the secondary and tertiary cases alkene is being favored, the elimination is being favored. So I just want to make some points very clear here. I'll compare both of them. I will talk about the disadvantages of both the methods and the advantages also. So here I will talk about dehydration of alcohol, and here we have Williamson. Okay. So first thing here you should remember is the reaction condition. ठीक है. तो यहाँ पे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन कंडीशन माइल्ड होनी चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर पे तभी ईथर बनेगा. फाइन. नाउ सेकंड थिंग, important point is only symmetrical ether, no mixed ether. ठीक है. तो दिस इज अ डिसएडवांटेज. ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है. नाउ ये क्या प्रिपेयर करता है, इट कैन प्रिपेयर ईथर्स विथ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, मतलब अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी और. ठीक है. तो अगर ब्रांच्ड ईथर हमें बनाना है तो वी कैन नॉट यूज दिस मेथड, दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर हियर इज कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स अगर हम यूज करेंगे so they favor elimination and they form alkenes. ठीक है. तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम लोग सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है. तो इसका मतलब है कि reagent that should be used is only 1 degree alcohol. You don't have any other choice अगर आपको ईथर बनाना है. ठीक है. बाकी बाकी में प्रोडक्ट बनेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन अगर ईथर बनाना है तो यू हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस विलियमसन सिंथेसिस. इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, ये दीज आर not there in Williamson synthesis because this is able to because Williamson synthesis was this method it came, it was to remove these disadvantages. ठीक है. तो पहले बात तो सिमेट्रिकल के लिए नहीं है ये, बोथ सिंपल एंड मिक्स्ड बना सकता है. ठीक है. तो दिस इज एन एडवांटेज कि बोथ सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर बना सकता है. ठीक है. सेकेंड एडवांटेज इज ब्रांच्ड ईथर भी बना सकता है. नाउ इफ द रिएक्शन इज आर एक्स प्लस आर प्राइम ओ एन ए विल गिव आर ओ आर प्राइम प्लस एन ए एक्स. ठीक है. तो इफ वी कंसीडर दिस रिएक्शन, मतलब आर जो है वो अल्काइल हैलाइड वाला अल्काइल ग्रुप है एंड आर प्राइम इज विद अल्कोक्साइड. ठीक है. तो व्हाट ऑल कैन बी द चॉइसेस, जैसे यहाँ पे जो चॉइस था हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है. ठीक है. यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट केस कैन बी आर इज 1 डिग्री एंड आर प्राइम इज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो वी विल गेट ईथर, जो भी होना चाहिए मैकेनिज्म के हिसाब से वी विल गेट दैट ईथर. आर ओ आर प्राइम हमें मिल जाएगा अगर आर इज 1 डिग्री, मतलब इफ द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी then we will get the ether. Now second choice can be R is equal to either 2 degree or 3 degree halide and R prime is 1 degree. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. ठीक है. R prime कुछ भी हो सकता है. तो we will get alkene. थर्ड हो सकता है R prime 1 डिग्री है और R prime जो है वो pH है, मतलब फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग. तो दिस विल गिव अ फेनॉक्साइड आयन. ठीक है. तो ये भी हमें क्या देगा, PHOR ईथर देगा. वहीं पे द फोर्थ केस कैन बी इफ आर पीएच है और आर प्राइम कुछ भी हो सकता है, देन हमें क्या मिलेगा, सपोज दिस इज सपोज दिस इज Cl एंड we have taken CH3O Na.
ठीक है। तो क्योंकि दिस शुड बी अ सिंपलर, द अल्काइल हैलाइड वाला जो अल्काइल ग्रुप है दैट शुड बी सिंपलर, दैट शुड नॉट बी अ बिग ग्रुप। ठीक है, वो स्मॉलर और प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, बट दिस इज नॉट प्राइमरी, सी, बिकॉज ये जो कार्बन है दिस इज अटैच टू टू अदर कार्बन, दिस इज 2 डिग्री। ठीक है, तो दिस शुड गिव एन एल्कीन अगर ये नॉर्मल ग्रुप होता तो, बट यहाँ पे दिस विल नॉट गिव एन एल्कीन क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे है, तो इट विल गिव सम प्रोडक्ट। ठीक है, और मे बी यू नीड सम अदर रिएक्शन कंडीशन। सो दीज आर द 4 केसेस जो कि पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इसमें इन शॉर्ट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जो आर होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, द क्रक्स यू कैन से, इसका जो पूरे का क्रक्स है, आई एम राइटिंग इट डाउन, आर एक्स ऑलवेज प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, तभी ईथर बनेगा। अगर ये प्राइमरी नहीं हुआ, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है, तो इट विल गिव एल्कीन बिकॉज एलिमिनेशन इज फेवर्ड। ठीक है, क्योंकि जो एल्कोक्साइड ग्रुप है इट विल देन एक्ट एज अ बेस। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि एल्कोक्साइड इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो आके अटैच हो रहा है सब्स्टिट्यूशन के केस में। ठीक है, और ऑलवेज प्राइमरी, और जो आर प्राइम है, आर प्राइम इट कैन बी एनीथिंग, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और इट कैन बी फेनॉक्साइड ऑल्सो, फेनाइल फेनॉक्साइड ग्रुप, तो भी वो ईथर देगा। ठीक है, एंड दिस आर प्राइम इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर SN1, sorry, SN2 mechanism. ठीक है, and same R prime is acting as a base if elimination is preferred. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप है ये क्या एक्ट कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और ये कब होगा, जब 1 डिग्री हेलाइड होगा, ये कब होगा, जब 2 या फिर 3 डिग्री हेलाइड होगा। ठीक है, सो ये जो रेड में आई हैव रिटन इन रेड, दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल द स्टडी दैट वी हैव डन फॉर विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इतना ही याद रखना है। So this was all for the preparation of ethers. Only 2 methods are there. कोई बहुत सारे reaction नहीं होते हैं. Next, in the next lecture, we will discuss about the physical properties and we will do some questions related to the Williamson synthesis. ठीक है. After those questions, I think अगर कोई थोड़ा बहुत doubt है, तो that will be cleared. This was all for today. Thank you.